Hi fi guys, do like, subscribe, share, comment and keep learning. Hi guys, today we are starting with motion, and first we'll do the theory and then it will be followed by some numericals. So before moving on to numericals, I would request कि आप लोग पूरी theory tips पे पहले learn कर ले, formulas, conversions and the meanings. Only after that you'll be able to understand the numericals very easily. So let us start. So सबसे पहले आता है speed. You might have learned in the junior classes, speed is distance upon time. Distance per unit time is your speed. So the formula is d divided by t. Then when this formula is valid when the acceleration of an object is 0 or the motion is uniform. So uniform motion मतलब equal distance in equal interval of time, and acceleration मतलब speed does not change. So as of now, little bit of brief about acceleration and uniform motion इतना काफी. The remaining details will come later on. So next is the units. As you know, SI unit of distance is meter and time is second, whereas speed is measured in meter per second. Other units are kilometer, hour and kilometer per hour. So इसी फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास दूसरे फॉर्मूलाज बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, d is equal to s into t, and time is equal to distance upon speed, so time is d by s. But if you remember speed is equal to distance upon time, then you can easily solve. No need to remember these formulas. Then there is guys unit conversion. बच्चों को यूनिट कन्वर्जन में काफी दिक्कत आती है जिसकी वजह से न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं. सो यूनिट कन्वर्जन क्या है? डिस्टेंस का है सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मीटर को किलोमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. सिमिलरली किलोमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100. सिमिलरली टाइम का आर से मिनट्स में जाना है इंटू 60, मिनट से सेकंड्स में जाना है इंटू 60, सेकंड से मिनट्स में जाना है डिवाइड बाय 60, मिनट से आवर्स में जाना है डिवाइड बाय 60. तो ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड के कन्वर्जन का. सो किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड आर द मेजर यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड. तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18. अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो रिवर्स करना है, मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 5. सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीड वाली कन्वर्जन. दिस इज न्यू. Then there is average speed, which means total distance divided by total time. सारा distance को ऐड कर दो, सारा distance time को ऐड कर दो and then divide. And this is always valid. No need to remember any condition for this. So that's a plus point. Next is velocity. Velocity is displacement upon time. Displacement, as you know, it is a shorter distance. So it is denoted by s. V is equal to s upon t. So units are same as speed, distance, and time. And again, this formula has the same condition. Acceleration should be 0 and the motion should be uniform motion. The average velocity is total displacement by total time. And इसमें जो important चीज याद रखने वाली है, total time तो हमेशा add होता है because it is a scalar quantity. But total displacement हमेशा add नहीं होता है unlike your distance. So total displacement कैसे निकालना है? It is as per the direction diagram or question because it is a scale vector quantity. It is not a scalar quantity. So first is it can be added if it is in same direction. Second is it might be subtracted if it is in opposite direction. Third is we might have to use Pythagoras theorem अगर वो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर सर्कुलर मोशन में या कोई क्लोज फिगर हो लाइक स्क्वायर और सर्कल तो उसको कैसे क्वेश्चन करना है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्न्स लगाने हैं, दैट इज टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम वो चल रहा है डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर वन राउंड. उसके बाद आता है डिस्टेंस व्हिच इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू पेरीमीटर. टर्न्स को पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, दैट यू विल गेट डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट इज एज पर डायग्राम. फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर शेप की बात करें, इफ ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, so B, C, D are these corners. So अगर आपका number of rounds point के बाद 0 0 आता है तो final point is A, so displacement आपकी 0 होगी because initial and final point are same. अगर B आता है तो 0.25 आएगा आपके number of turns में, C आता है तो 0.5 आएगा आपके number of turns में जिसमें पाइथागोरस निकालना है, और D आएगा तो 0.75 आएगा. Now D और B के लिए displacement is equal to side. AB एक साइड है, AD भी एक साइड है तो साइड बराबर है, और C के लिए पाइथागोरस बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. सिमिलर सर्कल में these are the points A B C D and में क्या क्या डेसिमल्स आएंगे this you have to learn. And if the final point comes out to be A, displacement is 0 because start और final एक ही बात है. If it is B,
Then decimal में 0.25 आएगा. Then we have to use Pythagoras because right angle triangle बनेगा with the two radius, horizontal and vertical. C आता है तो diameter होगा and number of turns के decimal में आएगा 0.5. अगर D आता है तो again Pythagoras होगा, decimal में आएगा 0.75. So guys, these are the important concepts. Please learn them and then we'll start with the numericals. Okay, so first question of average speed. Suppose a car covers 20 kilometers in 4 hours and next 40 kilometers in 2 hours. What is his average speed? What is his average speed? Average speed इसकी कितनी होगी? So let us see. सबसे पहले हमने गिवन लिखना होता है. We always have to write down given. जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें दो केसेस हैं. There are two cases. तो फर्स्ट केस का डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर्स. और फर्स्ट केस का टाइम कितना है? 4 आवर्स. वैसे ही सेकंड केस का डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर्स एंड सेकंड केस का टाइम कितना है? 2 आवर्स. ये हो गया हमारा गिवन. इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सॉरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला total distance by total time, which is d1 plus d2 upon t1 plus t2. We'll substitute the values. 20 plus 40 upon 4 plus 2, which is 60 by 6, and therefore average speed is 10 kilometers per hour. So this is the average speed. So this is the next question. मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूं. So देखो given हमारे पास क्या क्या है. Given is this 50 जो कि फर्स्ट केस का डिस्टेंस है, यूनिट से पता चल रहा है. Then this 20 के यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर. So it is speed. It is speed. Next is this. अब ये next लिख दिया मतलब सेकेंड केस है. तो let it be D2, distance is 40 kilometers and 2 hours. Hours मतलब time. So this is the time for second case. अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. तो हमें पता है एवरेज स्पीड के लिए हमें दो डिस्टेंस चाहिए एंड दो टाइम चाहिए, राइट? इसमें से हमारे पास क्या है? हमारे पास डिस्टेंस 1 है, हमारे पास डिस्टेंस 2 है, हमारे पास टाइम 2 है. लेकिन हमारे पास टाइम 1 मिसिंग है. टाइम 1 इज नॉट गिवन. सो जब भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है तब हम डिस्टेंस या टाइम जो भी मिसिंग होता है पहले उसे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वी फाइंड आउट द मिसिंग टर्म. सो देखो टाइम 1 कैसे निकलेगा. सो टाइम 1 निकाल लेंगे हम सिंपल फॉर्मूला से. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फर्स्ट केस का मिसिंग है तो फर्स्ट केस की वैल्यू यूज करेंगे. तो फर्स्ट केस में स्पीड इज 20, डिस्टेंस इज 50 एंड टाइम 1. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम 1 आपका ऊपर चला जाएगा एंड 20 आपका नीचे आ जाएगा. सो इट विल बी 50 by 20 which is 2.5 hours. So यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फर्स्ट केस आ गया.
So therefore एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी डिस्टेंस 1 50, डिस्टेंस 2 40, first time 2.5 and second time 2 hours. So this becomes 90 upon 4.5. So therefore average speed comes out to be 20 kilometer per hour. This is the answer. So this is the next question. Train covers 200 kilometers in 5 hours, then 100 kilometers at 50 kilometer per hour, then train travels 0.4 hours at 80 kilometer per hour. So देखो हमें गिवन में सबसे पहले क्वांटिटीज लिखनी है. ये है फर्स्ट केस का 200 किलोमीटर गिवन है. सो किलोमीटर इज बेसिकली डिस्टेंस, सो इट इज d1 इन 5 hours. तो मतलब मेरे पास फर्स्ट केस का टाइम है 5 hours. आगे देखते हैं. नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट केस स्टार्ट हो गया. 100 किलोमीटर चला है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इसका मतलब सेकेंड डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड सेकेंड केस की स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. यहां ध्यान दो, ये किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स इट इज स्पीड नॉट टाइम. तो यहां से मुझे क्या पता चला कि T2 मिसिंग है, बिकॉज एवरेज स्पीड के लिए D और T दोनों चाहिए. दैट मीन्स हमें T2 एक निकालना पड़ेगा. बट बिफोर फाइंडिंग दैट लेट्स मूव अहेड. आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है. थर्ड केस इसमें और है, देन ट्रेवल्स, मतलब एक और केस है. तो इसमें 3 केस है. 0.4 आवर्स, तो ये क्या है, टाइम. आवर्स में है तो दिस इज टाइम आवर्स में. अगेन किलोमीटर पर आवर में है तो दैट मीन्स इट इज स्पीड ऑफ थर्ड केस. स्पीड ऑफ थर्ड केस. इसका मतलब क्या है, थर्ड केस में डिस्टेंस इज मिसिंग. थर्ड केस में डिस्टेंस इज मिसिंग क्योंकि हमें एवरेज के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए होते हैं. सो इसीलिए हम पहले जो मिसिंग क्वांटिटीज हैं उन्हें फाइंड करेंगे, उसके बाद ही एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे. तो इसमें क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज 50, डिस्टेंस इज 100, T2. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर T2 इज, T2 ऊपर गया 50 नीचे आया, दिस बिकम्स 100/50 2 hours. सो T2 हमारे पास आ गया 2 hours. सिमिलरली हम थर्ड केस का डिस्टेंस निकालेंगे. सो S3 इज इक्वल टू D3 अपॉन T3. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. S3 इज 80, D3 निकालना है, टाइम इज 0.4. तो ये यहां जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो देयरफॉर D3 is 80 into 0.4, which comes out to be 32 kilometers. So this is your D3. So now we have all the elements, all the तीनों D हैं हमारे पास. Then we have all the 3 T. तीनों D और तीनों T हैं. So now we can solve average speed, which is total distance by total time. So D1 plus D2 plus D3 upon T1 plus T2 plus T3. So therefore total distance आ गया आपका 200 plus 100 plus 32 and total time आ गया आपका 5 plus 2 plus 0.4. So this comes out to be 332 divided by 7.4, which is 44.86 kilometer per hour. So this is your answer. 3 cases हैं, तीनों distance और तीनों time चाहिए. Only then we can find out the speed. So next question ये है आपका. So let us solve. सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कार 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. So that means this is a distance.
सम डिस्टेंस। उसने कहा फर्स्ट 50 किलोमीटर्स आर एट 100, मतलब फर्स्ट 50 आर एट 100 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स आर एट अ स्पीड ऑफ 100। तो ये स्पीड आपकी 1 फर्स्ट केस की गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड फॉर फर्स्ट केस। और उसने कहा है एट व्हाट स्पीड, मतलब हमें कोई ना कोई स्पीड निकालनी है। कौन सी स्पीड निकालनी है अभी देखते हैं। he should travel the remaining distance, remaining मतलब सेकेंड केस का, तो दैट मीन्स सेकेंड केस की स्पीड हमें निकालनी है। एट व्हाट स्पीड इट शुड ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस की स्पीड मतलब S2 सेकेंड केस की स्पीड निकालनी है। सो एज टू एवरेज 80, इसका मतलब एवरेज स्पीड गिवन है मुझे 80 किलोमीटर पर आवर। इस चीज को ध्यान से देखना, दिस 80 इज नॉट S2 बिकॉज में लिखा हुआ है एवरेज 80 होनी चाहिए। सो S2 इज नॉट 80, एवरेज इज 80। सो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस था आपके पास स्टार्टिंग में, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 200 था, जिसमें से फर्स्ट 50 पार्ट का आपको स्पीड पता है, रिमेनिंग जो पार्ट है उसकी स्पीड निकालनी है, और टोटल की एवरेज आपको पता है। सो इसमें हम क्या करेंगे देखो, तो सेकेंड केस का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, वी कैन फाइंड आउट सेकेंड केस का डिस्टेंस क्या होगा, 200 माइनस 50 विच इज 150 किलोमीटर्स, बिकॉज टोटल इज 200 जिसमें से फर्स्ट पार्ट 50 है, रिमेनिंग पार्ट निकालना है। सो सेकेंड डिस्टेंस इज 150। अब इसमें अगर मुझे स्पीड निकालनी है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट स्पीड, तो मेरे को डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया सेकंड केस का, बट टाइम इज मिसिंग। सो दैट टाइम वी विल फाइंड आउट फ्रॉम एवरेज स्पीड एंड देन विल फाइंड आउट S2। एवरेज स्पीड से पहले T2 निकालेंगे। सो कैसे होएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सॉल्व कर लेंगे। 80 इज इक्वल टू फर्स्ट का डिस्टेंस कितना है 2, फर्स्ट का डिस्टेंस इज 50, सेकंड का डिस्टेंस इज 150। सेकंड का टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट का टाइम तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों से। वी कैन फाइंड आउट द टाइम 1। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फर्स्ट केस के लिए, देयरफॉर 100 इज इक्वल टू 50 बाय T1। देयरफॉर T1 आ गया आपका 0.5 आवर्स। T1 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, सो 0.5 आवर्स आ गया T1। सो यहाँ पे T1 डाल देंगे 0.5, देन विल कैलकुलेट इट। ये कितना आ गया, 80 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस T2, 0.5 प्लस T2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड जाएगा एंड पूरा न्यूमरेटर नीचे आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस T2 इज इक्वल टू 200 बाय 80, एंड देन 0.5 प्लस T2 इज इक्वल टू, यहां से आपका डिवाइड करके आ जाएगा 2.5। सो T2 इज इक्वल टू 2 आवर्स। सो T2 कितना आ गया, 2 आवर्स। सो देयरफॉर सेकेंड केस की स्पीड विल बी D2 बाय T2 विच इज, सेकेंड केस का डिस्टेंस था 150, टाइम है 2, देयरफॉर S2 इज 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर से उसका सेकेंड पार्ट की स्पीड होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल स्पीड उसकी 80 बन जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है,
एक इंसान अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है, घर से ऑफिस गया, और उसके बाद जब वो गया है तो 80 की स्पीड से गया है, 80 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आया है शाम को, देन इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और हमें आने जाने की एवरेज स्पीड निकालनी है, आने जाने की दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। सो लेट अस सी कैसे होगा। जैसे कि हमें पता है, हमें एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए होता है। तो सपोज दिस डिस्टेंस इज between home to office is x. Distance between home to office is x. So can I say first case का distance x है and second case का distance भी x है, because जितना दूर जाने में है उतना ही दूर वापस आने में है. So दोनों cases का distance is x. This is the most important point in this question. First case की speed हमें पता है कितनी है, 80. सेकेंड केस की स्पीड हमें पता है कितनी है, 60. सो एज वी नो, एवरेज स्पीड के लिए हमें दो डिस्टेंस और दो टाइम चाहिए. सो दो डिस्टेंस हमने एक्स एक्स अज्यूम कर लिया अभी, तो एक तरीके से वी हैव देम, बट दोनों टाइम मिसिंग है. सो लेट अस फाइंड आउट द टाइम. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो 80 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, मल्टीप्लाई हो गए, ये ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया, तो t1 इज x बाय 80. सिमिलरली सेकेंड टाइम निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से. सो 60 इज इक्वल टू x अपॉन t2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, t2 ऊपर 60 नीचे, सो t2 आ गया x बाय 60. Once we get this, then we can find out the average speed. So अब average speed का फॉर्मूला यूज होगा. Average speed is total distance by total time, which is d1 plus d2 upon t1 plus t2. तो ये हो जाएगा x plus x upon t1 कितना है, x by 80, t2 कितना है, x by 60. So this is our average speed. इसके बाद इट इज सिंपल कैलकुलेशन एंड वी गेट द आंसर. सो देखो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी. न्यूमरेटर तो बन गया 2x, x प्लस x 2x, लेकिन डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करना है तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड सॉल्व. तो 80 और 60 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 240. 8 के टेबल में भी 24 एंड 6 के टेबल में भी 24 आता है. तो यहां से क्या हो गया, 8 3 जा, सो दिस बिकम्स 3x, एंड 60 के लिए 4 जा, सो दिस बिकम्स 4x. सो देयरफॉर द डिनोमिनेटर बिकम्स 7x अपॉन 240, which is, can I write it as 2x divided by 7x upon 240? Yes. So जब डिवीजन वाले को सॉल्व करना होता है, we can always multiply with inverse, so it becomes 240 by 7x. So cancel करेंगे हम, x से गया and करके we get 68.57 kilometer per hour. This is the average speed of this vehicle. So guys, very important question, extremely important question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा एटलीस्ट 2 times, देन इस पे हाथ बैठेगा. इसका नेक्स्ट पार्ट काफी आसान है. सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, जो कि होएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो 0 अपॉन टाइम, चाहे t1 हो t2 हो कुछ भी हो, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. एंड व्हाई डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0? बिकॉज
it returns to its initial point. जब भी अपने initial point पे वापस आता है, then displacement is 0 and hence velocity average is also 0. The second part was pretty simple. Hi guys, I hope you understood the topic. आपको अच्छे से समझ आया and do like and subscribe the channel ताकि आपको और भी topics की और भी chapters की videos आती रहें and you keep learning and do comment us below if you have any doubts and we'll try to clear it as soon as possible. And high five guys, do like, subscribe, share, comment and keep learning.